Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Today, in this video, we are going to learn the chapter number 10, The Beggar. This is the last chapter of your second term syllabus, written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is famous for his surprise ending of the stories, and the title of the chapter that's written there in your book also, that is The Beggar. So this story is about a beggar and he is the protagonist of the story. Who is the protagonist? Let's find out. This is some people get into bad habits and find it difficult to quit on their own. You might have seen some people in the world, or might have learned some stories, or might have seen them in the movies also. There have been some people shown to you who are in the bad habits, and they do not feel like quitting those bad habits. Quitting means to leave. They do not like to quit those bad habits. But if somebody is showing love, concern, and care towards them, they want to reform themselves. They want to bring the change in their behavior. So there is always a hope. If someone shows the kindness towards them, they may improve themselves. So we are talking about whom? We are talking about Lashkov, who is the beggar in the story, and he is the protagonist of the story. You know the meaning of protagonist, the main character of the story. He tells blatant lies. He openly lie about his plight. Plight means the sadness of his life. Okay. He tells blatant lies about the plight to arouse the sympathy of others. He wants to take the sympathy of others, and he very openly tell lies that I was a school teacher, I was in a respectable profession, now I have lost my job, please give me something. So he tries to gain the sympathy of others and want money from them, alms in return. He wants money from them. Okay, alms for food. Alms means money for food. He does not have physical strength, even he is emotionally weak. He has taken to drinking. He drinks alcohol, therefore he is physically very weak, and he does not have anyone to love him, therefore he is emotionally weak. Next, we are talking about Sergei. Sergei is an advocate. He's a prosperous advocate. He has been successful in his life. He's a straightforward and stern man, and he does not like people who tell lie. He's a short-tempered man, and he even reprimands Lashkov. He scolds Lashkov when he comes across Lashkov, and he tells him lie. He catches him and tells him that he is going to hand him over to the police, and he scolds him even. Now the third character is Olga. Olga is Sergei cook. She is working for Sergei here, and she looks like an ill-tempered lady. She is also looking as if she is short-tempered, but she is full of kindness. She also scolds Lashkov for being lazy. She curses him, and she even cries for him. She feels sympathy for him. So let's find out what is the story about. The story is going to revolve around these three characters. Let us start up. So here the story, you know that the protagonist is Lashkov. He is the beggar, and he has been asking for money from people. He's trying to gain the sympathy from people. So he has seen somebody standing and in the street might be, and he is doing his same game. He's repeating his same game of asking and taking the sympathy of that person so that he can get money in return. So he starts telling that please have pity on me, please have sympathy on me, please give me attention. I am a hungry man. I have not eaten for 3 days. I don't have even 5 kopecks. Kopecks kya hota hai beta? It is Russian coin. It is 1/100th of ruble. Ruble is, again, you know that, Russian money. So uska jo 100 part hota hai, usko hum kopek kehte hain. So he is saying, I don't have 5 kopek to live somewhere, to lodge, मतलब कहीं पे रहने के लिए. I don't have money. I swear on God, मैं God भगवान की कसम खा के कहता हूँ that for 8 years एक मैं स्कूल टीचर था. Now I lost my job through intrigues. Intrigues मतलब मुझे प्लान कुछ लोगों ने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किया, और मैं उसका विक्टिम बन गया. आई बिकेम द विक्टिम ऑफ कैलमनी. कैलमनी मतलब लोगों ने मेरे बारे में झूठी झूठी बातें बोली, और उसका मैं विक्टिम बन गया, और मुझे जॉब से निकाल दिया गया. एंड आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू. और इसलिए अब मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसा चाहिए. प्लीज हैव पिटी ऑन मी. थोड़ा सा मुझे पैसे दे दो. तो देखो बेटा, व्हाई इज ही टेलिंग द स्टोरी? बिकॉज ही वांट्स टू गेन द सिंपैथी. अगर आपको लगेगा कि अच्छा ये स्कूल टीचर था, ओ माय गॉड, यू विल फील सिंपैथी टुवर्ड्स हिम एंड यू वुड बी गिविंग समथिंग. ठीक है, तो इस तरह से ही इज ट्राइंग टू गेन द सिंपैथी ऑफ पीपल. अब जो सरगई था, जो एडवोकेट था, उसने उस बेगर की तरफ देखा. उसने उसके जो फेस पे, उसके चीक पे एक रेड स्पॉट देखा, और उसको याद आया कि इस आदमी को उसने कहीं ना कहीं देखा है, इस बेगर को उसने कहीं ना कहीं देखा है. और फिर बेगर ने बोलना शुरू किया, मेंडिकेंट. मेंडिकेंट इज अगेन द अदर वर्ड फॉर द बेगर. उसने बोलना शुरू किया कि मुझे एक जॉब का ऑफर आया है कालुगा से, एंड आई वांट टू गो देयर, एंड आई डोंट हैव द मनी टू बाय द टिकट और टू गो देयर. प्लीज, मुझे खुद ही बहुत शर्म आ रही है पैसे मांगते हुए, लेकिन
आई वुड बी हैप्पी इफ यू हेल्प मी समथिंग। तो सरगई ने उसके शूज देखे, जैसे सरगई ने उसके शूज देखे, एक जो शू था, ओवर शूज क्या होता है बेटा, शूज के ऊपर पहने जाते हैं, तो एक हाई था एक लो था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड, और उसने उसको बोला दैट आई हैव सीन, आई सॉ यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल ही देखा था। कहाँ देखा था? सदोविया स्ट्रीट में देखा था। और तब तुम मुझे बता रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे कॉलेज से या स्कूल से निकाल दिया गया है। टुडे यू आर टेलिंग दैट यू आर अ स्कूल टीचर, यू वर अ स्कूल टीचर। याद आया? तुम मुझे कल मिले थे। और जब बेगर को लगा कि वो पकड़ा गया, उसने कहा नो 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 नो, आई वाज अ स्कूल टीचर ओनली। तो ही स्टार्ट मम्बलिंग, उसने मम्बलिंग स्टार्ट किया, नो नो नो, आई कैन शो यू माय पेपर्स आल्सो, आई वाज अ स्कूल टीचर। अब सर्गे को गुस्सा आ गया, एज आई हैव टोल्ड यू ही वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। उसने कहा हैव डन विद योर लाइंग, अब तुम झूठ बोलना बंद करो। यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट, और तुमने मुझे कहानी भी सुनाई थी कि तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरगई बिल्कुल रेड हो गया, उसे गुस्सा आ रहा था। ही वाज फीलिंग वेरी बैड कि ये जो इतना यंग लड़का है, ये झूठी कहानियां सुना के लोगों की सिंपैथी लेके ही इज आस्किंग फॉर मनी। उसने कहा कि आई एम गोइंग टू सेंड यू टू द पुलिस। उसने कहा सर प्लीज हेल्प मी आउट, आई वाज लाइंग, प्लीज हेल्प मी आउट। मैं आज भी झूठ बोल रहा हूँ, ना ही मैं, आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। ठीक है, ये मैं सारी कहानी झूठी सुना रहा था। आई यूज टू सिंग इन रशियन क्वायर, मेरे पास एक ग्रुप था सिंगिंग का, आई वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप, रशियन क्वायर का मैं ग्रुप, मैं वहां पे सिंगिंग करता था। लेकिन आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट, जिससे मुझे निकाल दिया गया। आई हैव नथिंग टू डू, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सच भी, इफ आई वुड टेल ट्रूथ टू समबडी नोबडी वुड हेल्प मी। मैं क्या करूं? उसने कहा क्या करूं? यू कैन वर्क। उसने कहा यस आई एम माई सेल्फ सर्चिंग फॉर वर्क, मैं खुद ही वर्क के लिए सर्च कर रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर इफ यू आर सर्चिंग फॉर वर्क कैन यू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे? आई वुड पे यू फॉर दैट। अब वो अपने ही चाल में फंस चुका था, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बोला था कि यस आई वांट टू वर्क। तो उसने कहा यस ओके आई विल वर्क। तो उसने कहा ठीक है, कम इन, आई वुड टेल यू दैट हाउ टू चॉप द वुड, एंड इफ यू वुड चॉप द वुड यू वुड बी पेड फॉर इट। अब सर्गेई ने अपने किसको बुलाया? ओल्गा को बुलाया। ओल्गा इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओल्गा इज कुक ऑफ सर्गेई। तो उसने कहा ये ओल्गा है, एंड टेक दिस जेंटलमैन, उसने ओल्गा से कहा इस आदमी को ले जाओ वुड शेड में, एंड ही इज गोइंग टू चॉप वुड। ठीक है, इसको चॉप कराओ वुड को, एंड इफ ही डज इट डू टेल इट टू मी। अब ओल्गा उसको देख रही थी। ओल्गा ओल्गा वाज एबल टू मेक आउट कि ये थिन और लेजी लड़का क्या कर सकता है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में ये हमें बताया गया है कि उसके गेट से, गेट मतलब द वे ही वाज वॉकिंग, इट वाज वेरी क्लियर। गेट मतलब द वे अ पर्सन वॉक्स, उसके चलने से पता चल रहा था कि वो कुछ काम वाम नहीं करना चाहता है। एक्चुअली वो क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, वो प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, उसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। अब वो अपने वर्ड्स में ही फंस गया कि उसे काम करना है, उसे काम की तलाश है, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुका था वोडका वगैरह पी के, अल्कोहल वगैरह पी के, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो काम करे। सर्गेई जो था अपने ड्राइंग रूम में चला गया, और वहां से उसने एक विंडो से वो देख रहा था जैसे ओल्गा उसको लेके जा रही थी वुड शेड में लकड़ी कटवाने के लिए। तो उसने देखा कि सर्गेई सॉ द कुक मतलब ओल्गा और बेगर को, वो यार्ड में आए, और वहां से वो कहाँ जा रहे थे? शेड की तरफ जा रहे थे, स्नो को क्रॉस करके। ओल्गा को बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको देखकर, उसने उसको अपने एल्बो से पीछे पुश किया और शेड का दरवाजा खोला, और गुस्से से उसने दरवाजा खोला, बिकॉज शी वाज एबल टू मेक आउट कि ये पतला लड़का, लेजी आदमी, शक्ल से ही दिख रहा है, चल भी ऐसे रहा है, इतना मतलब ड्रंक है, उसने इतना पिया हुआ है, हाउ वुड ही कट द वुड। नेक्स्ट उसने क्या देखा, जो वो स्यूडो टीचर था, स्यूडो मतलब जो झूठा टीचर था, क्योंकि वो अपने आप को एक टीचर बता रहा था, तो इसने जो एक झूठा फेक टीचर था वो कहाँ बैठ गया? वो लॉक के ऊपर बैठ गया, लकड़ी के ऊपर, एक लकड़ी के लॉक पर बैठ गया। ठीक है, और अपने आराम से बैठ के, और ही वाज जस्ट रिलैक्सिंग ओवर देयर। फिर जो ओल्गा थी, शी थ्रू एन एक्स एट हिज फीट, उसने एक एक्स को थ्रो किया उसके फीट पे, और उसको बोला, और कुछ बोलना शुरू किया। अब सर्गेई इतने दूर से देख नहीं पा रहा है कि ओल्गा उसे क्या बोल रही है, बट आपको पता है किसी को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सन बहुत गुस्से में बोल रहा है। तो ही वाज एबल टू मेक आउट कि ओल्गा बड़े गुस्से में उसको कुछ बोल रही है। ठीक है, अब बेगर ने क्या किया, उसने एक बिलेट को खींचा। बिलेट क्या होता है बेटा? लकड़ी का जो एक लॉग होता है, उसको हम बिलेट बोलते हैं, इस तरह से। उसने एक लकड़ी के बिलेट को खींचा, उसके ऊपर अपने एक्स से ही स्टार्टेड हिटिंग इट, लेकिन वो गिर गया, वो बिलेट टूटा कहीं से, तो हल्का सा भी उसके ऊपर निशाने लगा और वो बिलेट गिर गया। ठीक है, अब वो उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा ही ऐसे हुआ। अब सर्गेई जब उसको देख रहा था बेगर को, दैट ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, उसको अपने आप को अशेम्ड फील हो रहा था कि मैंने इतने वीक इंसान को इतना मीनियल लेबर दे दिया। मीनियल मतलब जहाँ पे आपको बहुत नॉट स्किल्ड वर्क जो है, जहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, मैंने उसको ऐसा टास्क दिया, ही वोंट बी एबल टू डू दैट। लेकिन 1 घंटे बाद ओल्गा वहां पे आई और उसने बोला दैट ही हैज चॉप्ड द वुड। तो सर्गेई वाज हैप्पी, उसने कहा वेरी गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल। हाफ अ रूबल मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था, जो कॉपेक होता है, तो दैट इज 100 पाथ ऑफ
रूबल, तो 50 कॉपेक्स आप कह सकते हैं उसको उस दिन मिल गए। और उसने और सर्गेई ने ओल्गा को कहा दैट डू टेल हिम दैट इफ ही वांट्स टू कम every first day of every month he can come, we are going to find out some work for him and he will be paid for the same. अब उसने वो मैसेज उसको दे दिया। अब हर मंथ के फर्स्ट डे पे वो आ जाता था एंड दे यूज्ड टू फाइंड आउट सम वर्क फॉर हिम। मे बी वो वुड कटिंग का हो, मे बी वो स्नो को शॉवल करना हो। शॉवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे स्नो को क्लियर किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। चाहे वो वुड शेड को ऑर्डर में रखना हो, चाहे रग साफ करने हो, मैट्रेसेस साफ करने हो, तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाता था। कभी उसको 40 कॉपेक्स मिलते थे, कभी उसको 20 कॉपेक्स मिलते थे, कभी उसको 50 कॉपेक्स मिलते थे। कभी कभार तो उसको पुराने कपड़े, ओल्ड ट्राउजर्स वगैरह भी ही यूज्ड टू गेट फ्रॉम देयर, सो देयरफॉर ही यूज्ड टू कम एवरी मंथ, द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब Sergey was shifting to the new house and he needed some help, so he called up Lashkov. अब Lashkov जो है वो फर्नीचर को शिफ्ट कराना है घर, जैसे when you are shifting your home you need to shift many of the things, you need to pack many of the things and you need extra help. तो उसको बुलाया गया। तो आज जब वो आया था वो बड़ा सोबर लग रहा था, ठीक है, और बड़ा साइलेंट था। he was not affected by anything, he was shivering because of cold, he was feeling embarrassed। जब उसके जो कार्टर्स थे, जो कार्टर्स कौन है, जब वो पर्सन जो ट्रांसपोर्ट में जो लोड को कैरी करके ट्रक में रख रहे हैं, उसको ड्राइव करें, तो वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कितना वीक लड़का है, कितना फीबल है, कितना आइडल है, ठीक है। तो इस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो ही वाज नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, ठीक है। ही जस्ट बिकेम एम्बैरेस्ड। तो सर्गेई को लगा कि आज इसके अंदर कुछ चेंज है। पहले जैसे ये एक बहुत शोई पर्सन था, ब्लेटेंट पर्सन था, सीधे सीधे झूठ बोलता था, आज ये बड़ा चेंज इंसान लग रहा है, ठीक है। तो उसने उसको बुलाया अपने पास। उसने कहा वेल, अब सर्गेई ने बोला आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें देखकर, मुझे लग रहा है कि मेरे वर्ड्स ने तुम्हारे पर अफेक्ट किया है, दैट माय स्कोल्डिंग, द वे आई एम गिविंग यू द वर्क, इट हैज अफेक्टेड यू अ लॉट, ठीक है। अब मैंने आप उसको, उसने उसके हाथ में एक रूबल दिया, ठीक है, रूबल, एक पूरा रूबल मिल गया उसको। तो उसने कहा कि हेयर्स फॉर योर पेन्स, जितना भी तुमने मेहनत करी है उसके लिए मैं तुम्हें आज रूबल दे रहा हूँ, जो उसने घर शिफ्टिंग में हेल्प किया था। मुझे आज तुम बहुत सोबर नजर आ रहे हो। तब उसने उसका नाम पूछा, ही डिड नॉट नो हिज नेम येट, ही ओनली न्यू दिस थिंग दैट ही वाज अ लेबर। तो उसने बताया मेरा नाम लश्कॉफ है। उसने कहा वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, आई वांट टू गिव यू सम रिस्पेक्टेबल जॉब, क्या तुम्हें लिखना आता है? उसने कहा यस आई नो हाउ टू राइट। तो उसने एक लेटर दिया, अपने फ्रेंड के नाम पे एक लेटर लिख के दिया कि जाके मेरे फ्रेंड से मिल लेना, एंड वो आपसे कुछ कॉपीइंग का काम कराएगा, और प्लीज वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एंड रिमेंबर जो मैंने आपसे कहा है, अगर मेहनत करोगे, काम करोगे, तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो ही टुक द रूबल एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, ठीक है। अब देखो, जब कोई आप बहुत अच्छा काम करते हो और आपके वर्ड्स किसी पे कोई अफेक्ट देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सर्गेई को ही इज फीलिंग द सेम थिंग, ही वाज फीलिंग दैट ही हैज ब्रॉट अ मैन टू अ राइट पाथ। उसने अपना 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 शेयर दिखा के, अपना लव दिखा के, अपना कंसर्न दिखा के उसको राइट पाथ पे वो लेके आया है, ठीक है। अब लश्कॉफ वहां से लेटर लेके चला गया, उसके बाद वो वहां पे नहीं आया। नाउ 2 years हैव पास्ड, ठीक है, 2 years हैव पास्ड। और एक इवनिंग सर्गेई जो थे वो एक टिकट विंडो पे खड़े थे, ठीक है, और वो एक थिएटर देखने जा रहे थे। तो थिएटर से ही वाज बाइंग द टिकट ऑफ द थिएटर। तो वहां पे उनको एक आदमी दिखाई दिया, वही कर्ली फर, उसने कोट पहना हुआ था कर्ली फर का। तो ही कुड मेक आउट कि ये तो वही लश्कॉफ है। तो उसने कहा लश्कॉफ इज दैट यू? सर्गेई ने बोला, उसने उसको पहचान लिया कि ये वही वुड कटर है जो मेरे घर पे आया करता था। उसने कहा हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू? उसने कहा ऑल राइट सर, आई एम अ नोटरी नाउ। नोटरी कौन होता है बेटा? अ पर्सन who is authorized to perform certain legal formalities, कि उनके पास ना कुछ स्टैंपिंग वैम्पिंग के कुछ राइट्स मिल जाते हैं, तो इलीगल कुछ काम करते हैं। और ही सेइंग दैट आई एम पेड 35 rubles, जहां पे उसको 40 कॉपेक्स मिला करते थे, 50 कॉपेक्स मिला करते थे, नाउ ही इज गेटिंग 35 rubles। तो अब ये जो थे सर्गेई, ही वाज वेरी हैप्पी, सी दिस इज लश्कॉफ, दिस इज अ चेंज्ड पर्सन, ठीक है। अब उसने कहा थैंक हेवन, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, आई एम वेरी ग्लैड कि तुम मेरे गॉड सन जैसे हो, जैसे भगवान ने, यू आर लाइक माई सन, एज इफ गॉड हैड सेंट यू टू मी, यू आर लाइक माई सन, ठीक है। एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पुश यू टू द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? आपको याद है मैंने आपको कितनी बुरी तरह से डांटा था व्हेन यू वर सेइंग दैट आई एम अ स्कूल टीचर, ठीक है। तो उसने कहा थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो बी लाइक दिस एंड डू नॉट फॉरगेट माई वर्ड्स, ऑलवेज वर्क हार्ड। उसने कहा थैंक यू सर। अब लश्कॉफ ने बोला थैंक यू सर, अगर इफ यू आई वुड नॉट हैव फाउंड यू, अगर मुझे आप नहीं मिलते तो मैं आज भी अपने आप को टीचर बता रहा होता या स्टूडेंट बता रहा होता और झूठ बोल रहा होता, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन में रह के मैंने अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकाला, आई कुड टेक आउट माई सेल्फ फ्रॉम दैट पिट। तो सर्गेई ने बोला दैट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, ठीक है। तो उसने अब लश्कॉफ क्या कहानी सुना रहा है, लश्कॉफ क्या कह रहा है,
थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, जो आपने मेरे साथ किया और जो मुझे आपने मुझे काम दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. ठीक है, बट God bless that good and noble women. I want to bless that lady also. Whom is he talking about? He's talking about Olga. वो कह रहा है मैं लाइफ भर आई वुड बी इंडेटेड, मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा उस लेडी का जो आपकी कुक थी, ओल्गा. तो नाउ सर्गई वाज वेरी सरप्राइज. उसने कहा हाउ इज दैट? अभिलाष को आपने बताया, वेन एवर आई यूज टू कम टू योर होम टू चॉप वुड, I was so weak that I was not able to chop wood. I did not even chop a single wood for you. मैंने आपके लिए आज तक एक भी लकड़ी नहीं काटी. I was so weak. I could not do that. और जब वो लेडी मुझे देखती थी, she used to become sad. She used to weep. She used to call me an unlucky man. She used to say that you are a drunkard. तुम एक बहुत पीने वाले हो. You will burn in hell. You are unhappy one. And so on. She used to say bad words to me. She used to suffer a lot because of me. She used to shed tears for me. And every time when I was going there, she used to cut and chop wood for me. And she used to tell lie to you that I have chopped the wood and I used to get the money and leave from there. ठीक है? Are you getting that? और वो कह रहा है कि इसने मुझे धीरे धीरे चेंज कर दिया. I do not know why I changed myself. मुझे मेरे अंदर क्या बदलाव आया? मैंने पीना छोड़ दिया. I stopped drinking. जब वो मेरे सामने खड़ी होती थी, जो मुझे डांटती थी, जब मेरे लिए वो काम करती थी, this thing brought change in me. I do not know how. I cannot explain how. A change took place in my heart. She is the one who put me on the right path. I will never forget her in my life. However, it is the time to go. Now goes the bell. उसने कहा, लश्कफ ने कहा कि सर अब टाइम हो गया है, थिएटर स्टार्ट होने वाला है. I have to go. He bowed and departed to the gallery. और वो गैलरी में चला गया. तो आपको समझ आया? देखो बेटा, हम कह सकते हैं that Sergei was responsible to bring that person from the street to his home, but the love, care, concern, compassion shown by Olga brought change in him. So this is the story about that a person can reform himself if somebody is showing compassion towards him. That's it. I hope you have understood it. Stay tuned for the next video. Thank you.